بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں بڑے بڑے حکمرانوں کی عقل مندی اور دور اندیشی کو دیکھ کر بڑے بڑے تاریخ دان لکھتے وقت اپنی قلموں کو پکڑ کر بیٹھ جاتے تھے اور سوچتے تھے کہ آخر ان لوگوں کے پاس اتنی ذہانت اور اتنی دور اندیشی کہاں سے آتی تھی، جو بغیر کسی ٹیکنالوجی، بغیر کسی ذرائع کے اتنے بڑے بڑے مشکل حالات سے کیسے نمٹ لیتے۔ اور جہاں ہم بڑے حکمرانوں، بڑے بڑے بادشاہوں، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے حاکموں کی عقل مندی اور دور اندیشی کے واقعات اور قصے پڑھتے ہیں، تو وہاں ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے واقعات ضرور نظر آتے ہیں، جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بہترین حکمت عملی اور بہترین اور صحیح وقت پر بہترین فیصلوں سے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی آپ ایک سچے عاشق رسول اور مجاہد تھے۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ دربار میں بیٹھے ایک مقدمے کی سماعت کر رہے تھے، اتنے میں سلطان کو ایک قاصد نے آ کر چٹھی دی اور سلطان کے کان میں کچھ کہنے کے بعد وہ قاصد وہاں سے چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس چٹھی پر الفاظ پڑھے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر خوشی کے آثار پریشانی میں بدل گئے۔ سلطان کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر علی بن سفیان سمجھ چکا تھا کہ ضرور سلطان کو کوئی بری خبر ملی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ مشاورت ختم کر کے اپنے کمرے میں چلے گئے تو پیچھے پیچھے علی بن سفیان بھی آپ کے کمرے میں پہنچ گیا۔ سلطان سے عرض کرنے لگا، سلطان معظم، ایسی کیا خبر آئی جس نے آپ کے چہرے کے تاثرات کو بدل دیا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو کہا، میرے جاسوسوں سے مجھے ایک خبر ملی ہے کہ رونسن وادی میں ایک بہت بڑا قبیلہ آباد ہے اور اس قبیلے کا سردار ان پر بہت ظلم کر رہا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے قبائل پر اپنے سپاہیوں سے حملہ کرتا ہے اور وہ قبائل کو یرغمال بنا کر ان کی عورتوں اور مردوں کو الگ الگ جگہ پر ننگا کر کے قید کر لیتا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، آپ مجھے کھل کر بتائیں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ کیونکہ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے بہت چہیتے ساتھی تھے، لہٰذا سلطان نے فرمایا کہ خبر کے مطابق اس ظالم صفاق سردار نے اپنے قبیلے کے ساتھ ہی دو بڑی حویلیاں بنوائی ہوئی ہیں۔ ان میں وہ جن قبائل پر حملہ کرتا ہے ان کے مردوں اور عورتوں کو ننگا کر کے ایک حویلی میں ان ننگے مردوں کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسری حویلی میں ننگی عورتوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس حویلی کے اوپر کوئی چھت موجود نہیں۔ وہ اتنا ظالم اور صفاق انسان ہے کہ اگر سردی کی شدت سے کوئی مرد یا عورت اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کو یا اپنی شرمگاہ کو چھپائے تو ان کے اوپر کھڑے سپاہی ان کو پتھر مارتے ہیں اور ان کو چھوٹی کنکریاں اور پتھر ملا کر خوراک دی جاتی ہے، اور پانی پینے کو ایک کڑوا جو کہ گندا پانی ان کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب سن کر علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، آخر وہ ظالم صفاق سردار ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا، وہ ظالم اور صفاق سردار لوگوں کو ننگا دیکھنا چاہتا ہے اور نہ جانے کیوں انسانوں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ تو علی بن سفیان نے کہا، حضور، آخر ایک چھوٹے سے قبیلے کا سردار اتنا طاقتور اور مضبوط کیسے بن گیا کہ اس نے کئی قبیلوں کو حملہ کر کے ان کا نام و نشان مٹا دیا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ وہ بہت ہی چالاک اور شاطر ہے، اور وہ اسی طرح گھات لگاتا ہے کہ قبیلے کے سپاہیوں کو بھنک بھی نہیں لگتی، اور جس قبیلے پر وہ حملہ کرتا ہے وہ ان کے سپاہیوں کو اپنے محتاج کر کے اپنا سپاہی بنا لیتا ہے، کیونکہ سپاہی شرمندگی کی موت مرنے سے بہتر اس کے سپاہی بننا پسند کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے پاس سپاہیوں کا بہت بڑا لشکر تیار ہو چکا ہے، اور اس حویلی میں اس نے ہزاروں کی تعداد میں مردوں اور عورتوں کو ننگا کر کے رکھا ہوا ہے۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے سنی تو آپ بڑا پریشان ہو گئے اور علی بن سفیان کو کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ جب تک میں ان معصوم اور مظلوم عورتوں اور مردوں کو اس ظالم سردار سے آزاد نہیں کروا لیتا اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ علی بن سفیان نے سلطان سے کہا، حضور،
हम इसके इतने बड़े लश्कर से कैसे जंग लड़ेंगे। तो सुल्तान ने कहा कि मैं इस जालिम सरदार को उसी ही की चाल में फंसाकर कुत्ते की मौत मारूंगा और किसी मजलूम को एक खराश भी नहीं आएगी। सुबह हुई तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सुफियान को फरमाया, इस कबीले पर हमला करने से पहले मुझे 2-3 दिन में चंद अहम मुकदमे निपटाने हैं। वो चंद अहम अमूर निपटाकर हम एक ऐसी हिकमत अमली तैयार करेंगे जिससे हम इस सरदार पर हमला करके इसके कबीले को आग लगा देंगे और इन तमाम मजलूमों को रिहा करवा देंगे। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह घोड़े पर सवार हुए और रवाना हो गए। इसी सफर के दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का गुजर एक बाजार से हुआ। बाजार से गुजरते हुए अचानक सुल्तान की नजर एक हलवाई की दुकान पर पड़ी। हलवाई वाला कुछ चीजें उठाने के लिए वापस पलटा तो आगे से खड़ा एक छोटा सा बच्चा जिसने हलवाई के रखे हुए हलवे में से थोड़ा हलवा चुरा लिया। ये सब सुल्तान ने देखा तो सुल्तान को बहुत गुस्सा आया। इतनी छोटी उम्र में ये बच्चा बुरी आदत पर लग गया, लेकिन सुल्तान किसी आम काम के लिए तेजी से जा रहा था, लिहाजा सुल्तान ने वहां रुकना मुनासिब नहीं समझा। सुल्तान अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। दूसरे दिन इत्तफाकन सुल्तान का गुजर किसी अहम अमूर के सिलसिले में वहां से हुआ तो फिर वही वक्त था। सुल्तान इस हलवाई के पास से गुजरा तो सुल्तान की नजर फिर उसी बच्चे पर पड़ी। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह दूर से खड़े देख रहे थे कि क्या बच्चा आज फिर से भी वो चोरी करता है या फिर वो इत्तेफाक था। फिर बच्चे ने दुकानदार से कुछ ऐसी चीज मांगी जिसको लेने के लिए दुकानदार पीछे की तरफ गया तो फिर इस बच्चे ने हलवा चुराया, किसी को पता भी नहीं लगने दिया और वहां से चला गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस हलवाई वाले के पास गए और फरमाया, ए नौजवान, तुम शक्ल से अच्छे कारोबारी लगते हो, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई। तो वो नौजवान कहने लगा, भाई आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इत्तफाकन मैं कल भी तुम्हारी दुकान के पास से गुजरा और आज भी तेरी दुकान के पास से, तो मैंने देखा कि कल भी बच्चे ने आपसे कुछ ऐसी चीज मांगी जिसको आप लेने के लिए दुकान के पिछले हिस्से में गए तो इस बच्चे ने आपके हलवे में से हलवा चुरा लिया और आज भी जब मेरा इत्तफाकन वहां से गुजर हुआ तो मैंने देखा कि फिर बच्चे ने आपसे कुछ ऐसी चीज मांगी जिसको लाने के लिए तुम जैसे ही पीछे की तरफ गए तो इस बच्चे ने वहां से हलवा चुरा लिया, लेकिन तुम्हें फिर भी पता नहीं लगने दिया। जब ये बात इस हलवाई ने सुनी तो मुस्कुराने लगा और कहा, भाई साहब, जिंदगी के कई साल इस कारोबार को करते हुए गुजर गए हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी चोरी हो रही है और मुझे पता नहीं। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हैरत ज़दा नजरों से देखा और कहा कि अगर तुम्हें पता है कि वो बच्चा तेरी चोरी करता है तो तुमने इसे रोका क्यों नहीं। तो ये सुनकर इस नौजवान की आंखों में आंसू आ गए और कहा, भाई साहब, ये एक राज है, अगर ये राज आप मालूम करना चाहते हैं तो जब कल बच्चा हलवाई की चोरी करे तो आप इसका पीछा करना और इस राज के बारे में मालूम कर लेना कि आखिर वो बच्चा हर रोज मेरी दुकान से हलवा चोरी करता है और बावजूद इसके के मुझे पता चल जाता है, लेकिन मैं इसका पीछा क्यों नहीं करता। सुल्तान बड़ा हैरान था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। वापसी पर सुल्तान का गुजर इस जगह से हुआ तो अब सुल्तान इस इंतजार में था कि वो बच्चा दुकान पर आए और इस हलवाई वाले की चोरी करे, और जब वो पीछे की तरफ जाएगा तो मैं इसका पीछा करूंगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इंतजार में थे कि अभी वो बच्चा आया। इसने मिठाई वाले से कुछ और चीजें ली और जब वो मिठाई वाला पीछे की तरफ गया तो इसने फिर से हलवा चोरी किया और दुकानदार को भी पता नहीं चलने दिया और वो चीजें लेकर वापस की तरफ पलट गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इसका पीछा करता जा रहा था और वो बच्चा पैदल चलता जा रहा था। पीछा करते करते सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि वो बच्चा एक छोटी सी झोपड़ी में दाखिल हुआ। सुल्तान हैरान था कि ये बच्चा झोपड़ी में क्या करने गया है। ये तो खस्ता हाल झोपड़ी दिख रही थी और इसको देखकर ये नहीं लगता कि इसमें कोई रहता होगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह घोड़े से उतरे और इस झोपड़ी के दरवाजे पर गए तो अंदर से किसी के ऊँघने की आवाज आई।
जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अंदर गए तो एक बूढ़ी औरत जिसकी नजर बहुत कमजोर थी और बड़ी मुश्किलों से वो हलवा खा रही थी। सुल्तान ने जब इसको देखा तो इसके मुंह में एक भी दांत नहीं था, और जब सुल्तान ने पीछे ख्याल दौड़ाया तो फिर सुल्तान की समझ में आ गई कि इतना छोटा सा बच्चा होकर जब चोरी करता है तो ये चोरी ना ही अपनी माँ के लिए, ना ही अपने बाप के लिए, ना ही अपनी बहन भाइयों के लिए और ना ही अपनी जात के लिए, बल्कि एक बूढ़ी औरत जो इसकी कुछ नहीं लगती इसके लिए करता है। और इस बूढ़ी औरत को हलवा देकर अपना सामान लेकर घर की तरफ चला जाता है। मालूम करने पर पता चला कि इस बच्चे के माँ बाप बहुत कंजूस और सख्त हैं, लिहाजा वो अपने पैसों से भी इस बूढ़ी औरत को कुछ नहीं खिला सकता। इसलिए मजबूरी में आकर वो इस हलवाई वाले की चोरी करता है और जाकर इस बूढ़ी औरत को खिलाता है। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस दुकान वाले के पास गए और इसे इनाम में 100 सोने के सिक्के दिए और फिर और सिक्के दिए। कहा, अब से इस बच्चे को चोरी करने की जरूरत नहीं, तुम अपने हाथों से इस बूढ़ी औरत के लिए खाने का बंदोबस्त करके इस बच्चे को दोगे और वो बच्चा इसको जाकर खिलाएगा, ताकि इसके दिल में अभी से ये ना हो कि वो गलत काम करके नेकी कर रहा है। और इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह 3 दिन के सफर के बाद वापस अपने महल की तरफ लौटे। सुल्तान के पीछे जंग की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वजीरों और अपने साथी अली बिन सफियान को अपने कमरे में बुलाया और एक ऐसी हिकमत अमली तैयार की जिसके तहत इस कबीले के सरदार का बचकर निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। वो हिकमत अमली ये थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक झूठा कासिद बनाकर इस सरदार की तरफ भेजा और कहा कि फलां कबीले का सरदार किसी जंगी मुहिम पर रवाना हो गया है, लिहाजा तुम इस कबीले पर हमला करके वहां से बहुत सारा माल और इस कबीले की खूबसूरत औरतों पर कब्जा कर सकते हो। जैसे ही ये सरदार छोटे से कबीले पर हमला करने के लिए रवाना हुआ, इसके दिल में बड़े बड़े ख्याल आ रहे थे कि आज एक और कबीला फतह कर लूंगा और खूबसूरत औरतों से अपनी निगाहों की प्यास बुझाऊंगा। ये इन ख्याली पुलाव में मसरूफ था। पीछे से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके कबीले पर हमला करके इसके कबीले को आग लगा दी और तमाम औरतों और नंगे मर्दों को रिहा करा लिया। रिहा कराने का तरीका यह था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारे लिबास मंगवाए और लिबास इस हवेली की दीवारों के ऊपर से फेंके गए। हर मर्द और औरत वो लिबास पहनकर बाहर आती गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इनको सीधा मिस्र में ले आए और इनके रहने के लिए बहुत सारे खैमे नस्ब किए गए और इनके रहने का बंदोबस्त किया गया और इन सारे कबाइल के सिपाहियों, मर्दों, औरतों का एक सरदार मुकर्रर किया गया जो इनकी जरूरत का ख्याल रखता था। उस वक्त के ईसाइयों के बादशाह रिनाल्ड के भाई की बेटी भी इसी नंगे काफिले में मौजूद थी और जब सुल्तान ने इस काफिले के लोगों को आजाद कराया तो इस लड़की ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का शुक्रिया अदा किया और बताया कि मैं बादशाह रिनाल्ड की भांजी हूँ और मैंने तो सुना है कि मुसलमान ईसाइयों और यहूदियों के दुश्मन हैं, इनको कच्चा चबा जाते हैं और इनका खून पी जाते हैं। अगर आपने मेरे साथ ऐसा ही सलूक करना है तो मैं उसी सरदार की कैद में नंगी ही खुश हूँ। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बेटी चाहे दुश्मन की हो या दोस्त की, मुसलमान उसे अपनी बेटी समझता है और अपनी निगाह में इसके लिए वही इज्जत रखता है जो अपनी सगी बेटी, सगी बहन के लिए रखता है। तुम्हें जिसने भी बताया है कि मुसलमान इंतहाई जालिम है, इसने आपसे झूठ बोला। लेकिन हाँ, मैदान में अगर हमारे साथ किसी दुश्मन का सामना हो तो हम उसे कच्चा चबाने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन औरतों को हथियार बनाकर मुसलमान का इस्तेमाल करना इसकी शान के खिलाफ है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सर की पगड़ी उतारी और एक वजीर से कहा कि इसको बादशाह रिनाल्ड के पास खैरो आफियत से पहुंचाया जाए। इस लड़की ने जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के ये अल्फाज सुने तो बड़ी हैरान हुई और दिल में सोचने लगी कि मुझे मुसलमानों की तारीख गलत बताई गई है। इस लड़की ने फौरन सुल्तान से कहा कि आप मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं यहाँ से मुसलमान होकर जाना चाहती हूँ। अगर मुसलमान आप जैसे होते हैं तो ईसाई और यहूदियों को मैं देख चुकी हूँ,
तो बिला शुबा मुसलमान इस कायनात की सबसे अजीम कौम है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस लड़की को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया और एक वजीर से कहा कि इसे बादशाह रिनाल्ड के पास ऐसे पहुंचाओ कि रास्ते में इसे हवा भी न छू सके। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी अक्लमंदी और हिकमत अमली को इस्तेमाल करते हुए इस सरदार से इन लोगों को बाजियाब करवाया और बाद में खुले आम जंग करके इससे फतह हासिल की और वहां पर एक मुसलमान वजीर को तैनात किया और ये कबीले वाले अपनी आजादाना जिंदगी गुजारने लगे और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को दुआएं देते रहे। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अमली तौर पर यह भी साबित किया कि बेटी खा किसी की भी क्यों ना हो, मुसलमान हमेशा इसे अपनी इज्जत समझता है। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आखिर में कमेंट बॉक्स में एक दफा दरूद पाक जरूर लिखिए।